Hello students, how are you? Today we'll talk about the osmotic pressure, and this is the last colligative properties. We have talked about three more colligative properties: relative lowering in vapor pressure, depression in freezing point, and elevation in the boiling point. So this osmotic pressure is the last colligative property. So today we'll talk about the osmotic pressure. Okay. Just before entering into osmotic pressure, first of all, we'll have to learn about what is the meaning of this osmosis. Okay. Osmosis is what? First of all, we'll talk about the definition of osmosis. Osmosis actually it is the flow of solvent. It is the flow of solvent. Okay. From less concentrated solution to the more concentrated solution through a semi permeable membrane. Okay, so it is the movement or it is the flow of solvent from the less concentrated solution to a more concentrated solution. Meaning क्या है इसका? Just listen. Suppose there are two solutions. This solution is solution 2 and this solution is solution 1. Okay, now this solution 2 is more concentrated, solution 1 is less concentrated. Actually in chemistry what is the meaning? I mean high concentrated solution किसको बोलते हैं? The solution which is having more amount of solute. जिस सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. एंड द सोल्यूशन विच इज़ हैविंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसको हम बोलते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ओके, so the solution which is having more amount of solute, just remember more amount of solute, it is high concentrated, and the solution which is having less amount of solute means low concentrated or very less concentrated. And listen, यहाँ पर देखो इस solution, this particular solution, ये these I mean the orange balls, these orange balls are representing the particles of the solute. Okay, and these blue balls, blue जो balls हैं ये, these are representing the particles of the solvent. So solution 2, it is very clear, solution 2 is having more number of these solute particles and solution 1 is having less number of solute particles. So as the solution 2 is having more number of solute particles, so this is high concentrated solution. ठीक है, ये सोल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये सोल्यूशन नंबर 2 जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. और सोल्यूशन ए में जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, तो ये लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन भी बोलते हैं. यू नो डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स मोर वाटर देन सॉल्यूट पार्टिकल्स. ज़्यादा पानी जिसमें होता है उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल कम है. जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं उसे हम बोलेंगे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. सो ये तो सिंपल सी चीज़ थी. नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज, लिसन, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट और फ्लो. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स. ये देखो यहाँ से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दूसरे सोल्यूशन में जा रहे हैं. कहाँ से कहाँ जाते हैं? Osmosis is the movement of or the flow of solvent particles from a solution of low concentration to the solution of high concentration. समझ आया? It means osmosis is what? Osmosis is the movement or flow of the only solvent I am talking about. Osmosis is the flow of only solvent, only solvent. It is a flow of only solvent from where to where? From less concentrated solution to the high concentrated solution. Okay, through a semi permeable membrane. Okay, इसको हम बोलते हैं osmosis. मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि osmosis it is the flow or the movement of the solvent particles कहाँ से कहाँ? लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन.
इस मेम्ब्रेन के थ्रू वहाँ जाना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ आए? अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों सोल्यूशन आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के थ्रू ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में मूव कर रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है, ये इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये है कि ये दिस मेम्ब्रेन इज अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू गो थ्रू। आर यू गेटिंग मी? मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही इसके थ्रू जा सकते हैं, सॉल्यूट नहीं जा सकते। देखो अगर हम भी देखें विजिबल आइज से, यहाँ से देखो, जो हम अपनी आइज से देखें यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। देखो, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू क्रॉस दैम? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेमी परमिएबल है, पूरे तरीके से परमिएबल नहीं है, कुछ चीज़ों को ही अलाउ करती है जाने के लिए। सेमी परमिएबल है, परमिएबल मतलब अलाउ करना, तो सेमी परमिएबल है, सबको अलाउ नहीं करती। सो ऑस्मोसिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस इज द फ्लो और द मूवमेंट ऑफ द ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब कि डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ आ गया ऑस्मोसिस सबके? सो ऑस्मोसिस ये बहुत सिंपल था। ऑस्मोसिस मतलब इट इज़ ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, एक डाइल्यूट सोल्यूशन या लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होनी बहुत ज़रूरी है, बिना मेम्ब्रेन के इधर उधर का जो ट्रांसफ़र कहलाएगा ना, वो तो ऑस्मोसिस, वो हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूजन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस। देयर शुड बी अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज अगर ये मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो सॉल्यूट के पार्टिकल भी तो मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव किस में, ऑस्मोसिस में किसको मूव करना है? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन गो थ्रू फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। यही मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब जो सेमी परमिएबल, लिसन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आई टोल्ड यू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट मे बी एनिमल ओरिजिन और इट मे बी प्लांट ओरिजिन। मतलब ये हमें एनिमल से भी मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। एनिमल ओरिजिन इज एग्जाम्पल इज पिग्स ब्लैडर। पिग्स ब्लैडर जो होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ एनिमल ओरिजिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो नेक्स्ट one, a different kind of, I mean there is another type of semi permeable membrane. This is synthetic. It is cellophane, not cellophane, it is cellophane membrane. Okay, cellophane membrane is a synthetic membrane. Now this osmosis, it is having so many different applications and so many questions has been asked in various examinations regarding the osmosis. I mean the osmosis is having so many applications and different application has been asked in various entrance examinations and board as well. 12th क्लास के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसके एप्लीकेशंस। देखो इसके एप्लीकेशंस वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? दिस इज रीज़न है इसका, ये आता है क्वेश्चन। रॉ मैंगोज श्रिंक इनटू पिकल व्हेन प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। तुम लोगों को पता है जैसे घर में पिकल बनता है, तो पिकल बनने के टाइम पे क्या करते हैं, एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें रॉ मैंगोज़ को डिप कर देते हैं सारे, थोड़े टाइम के लिए रखते हैं। फिर जो रॉ मैंगोज़ जो होते हैं ना, वो श्रिंक करने लगते हैं। पिकल में जैसे मैंगो होते हैं ना, वैसे होने लगते हैं श्रिंक करने के लिए, श्रिंक करने के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है इसका? सो रीज़न इज़, देखो ये सपोज दिस इज़ रॉ मैंगो, ये सपोज ये रॉ मैंगो है और रॉ मैंगो इज सराउंडेड बाई NaCl सोल्यूशन। अभी बताया ना सॉल्ट सोल्यूशन, इट इज़ सॉल्ट सोल्यूशन ना, सो इट इज़ सराउंडेड बाई NaCl सोल्यूशन। अब यहाँ देखो आउटसाइड ऑफ द रॉ मैंगो, आउटसाइड ऑफ द मैंगो, रॉ मैंगो, ये NaCl सोल्यूशन है। NaCl सोल्यूशन मतलब दिस आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑफ द मैंगो बिकम्स वेरी, और यू कैन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इट बिकम्स वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कहाँ? ये मैंगो के बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है, इट बिकम्स वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिज़ोल्व NaCl है। NaCl जो होता है सॉल्यूट, मतलब NaCl क्या है? एक सॉल्यूट है,
और सॉल्यूट जो होता है इस सोल्यूशन को उसने क्या बना दिया, एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया। आर यू गेटिंग मी? सॉल्यूट ज़्यादा है इसमें। मैंगो के अंदर NaCl है नहीं, ओके तो जब NaCl ही नहीं है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो कम हो गया। बाहर की साइड में बहुत ज़्यादा है, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट था, जो सॉल्ट सोल्यूशन है, इट बिकम्स वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और इनसाइड ऑफ द मैंगो इट इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ओके तो अल्टीमेटली क्या होगा इसमें, देयर आई मीन द ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, एंड इन ऑस्मोसिस व्हाट हैपेंस, the solvent particle moves from low concentration to the high concentrated solution. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन कहाँ था, NaCl सोल्यूशन। आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस NaCl, सो दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। मैंगो के अंदर का इन्वायरमेंट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, सो मैंगो के अंदर के इन्वायरमेंट से जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मीन्स इट मे बी वाटर, सो इसमें रॉ मैंगो में तो वाटर ही है, सो वो जो हमारा वाटर है, वो सॉल्वेंट इट मूव्स आउट थ्रू द रॉ मैंगोज इनटू द सॉल्ट सोल्यूशन, और जिसकी वजह से जब इसमें से पानी निकलेगा ना, जैसे पानी निकल रहा है NaCl की वजह से, तो ये एक तरीके से श्रिंक कर जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? सो रॉ मैंगोज श्रिंक्स इनटू पिकल, ओके क्यों? बिकॉज द वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द रॉ मैंगोज and it is coming out inside the NaCl solution, or you can say in short osmosis is taking place, जिसकी वजह से पानी बाहर आ जाता है उसका और ये श्रिंक कर जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, आई होप ये इट वुड बी बहुत ही ईजिली समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट इज विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। तुमने देखा होगा कि एक विल्टेड फ्लावर अगर हमने लिया, विल्टेड फ्लावर मीन्स मुरझाया हुआ फ्लावर, अगर मुरझाए हुए फ्लावर को हम पानी में रख दें, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद वो फिर से खिलने लगता है, रिवाइविंग ऑफ द विल्टेड फ्लावर हो जाता है वहाँ पे। ऐसे क्यों होता है? ये भी बिल्कुल ऑस्मोसिस है। विल्टेड फ्लावर है, विल्टेड फ्लावर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें सब सारा पानी निकल गया है, सो इट इज़ नॉट हैविंग वाटर। व्हाट द विल्टेड फ्लावर इज़ हैविंग सो मच सॉल्यूट पार्टिकल्स। विल्टेड फ्लावर में बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, लेकिन विल्टेड फ्लावर में पानी नहीं है। अगर हमने उसे वाटर में रख लिया, ठीक है, ये विल्टेड फ्लावर है, ये विल्टेड फ्लावर है, हमने इसे वाटर में रखा, सो क्या होगा, बाहर का जो इन्वायरमेंट है फ्लावर का, इट इज़ मोर डाइल्यूटेड और लेस कॉन्सेंट्रेटेड, डू यू रिमेंबर। और जो अंदर का इन्वायरमेंट है फ्लावर का, क्योंकि उसमें से सारा पानी निकल चुका है, सिर्फ सॉल्यूट है, कुछ है ही नहीं, सो इनसाइड ऑफ द फ्लावर इट इज़ हैविंग ओनली सॉल्यूट, नो वाटर, बट आउटसाइड ऑफ द फ्लावर अगर हमने इसे पानी में रखा तो ये बाहर का जो पानी है वो डाइल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, सो ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे, और पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पानी, वाटर विल मूव फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम टू द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम, आई मीन बाहर से वाटर विल मूव इनसाइड ऑफ द फ्लावर, और जिसकी वजह से फ्लावर जो होगा ना वो उसमें विल्टिंग ख़त्म हो जाएगी और वो खिल जाएगा पूरे तरीके से। समझ आया? आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके तो फ्लावर जो होता है वो बिल्कुल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें बाहर पानी है, उसमें पानी वाले अगर पानी में रखेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो अब जैसे ही हम फ्लावर को वाटर में रखेंगे, वाटर विल मूव इन साइड ऑफ द फ्लावर एंड अल्टीमेटली द विल्टेड फ्लावर विल बी रिवाइव्ड। ओके ऐसी एक और एग्जाम्पल है हमारा, लिम्ड कैरेट्स बिकम फर्म अगेन व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। लिम्ड कैरेट मीन्स ये भी एक तरीके से सूखी हुई गाजर है, तो सूखी हुई गाजर इट मीन्स लिम्ड कैरेट, अगर उसको भी हम पानी में डालते हैं तो लिम्ड कैरेट मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग वाटर, इट इज़ हैविंग ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स। सो जैसे ही हम उसको वाटर में रखते हैं, बिल्कुल विल्टेड फ्लावर के तरीके से, जैसे ही हम उसको वाटर में रखते हैं, सो द वाटर स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड, ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। Why the water is moving inside? Because the outside of the carrot जो environment है it is more diluted, okay, and inside environment of the carrot is very concentrated. So during the osmosis the water will move, the solvent will move from less concentrated solution to the high concentrated solution. मतलब कि पानी जो है, बार बार वही चीज़ समझा रहा हूँ, ये कैरेट है and it is surrounded by water, so this water is
दिस इन्वायरमेंट, कैरेट के इन्वायरमेंट का जो है बाहर का, वो बहुत ही डाइल्यूटेड है, और अंदर का जो है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि अंदर तो वाटर ही नहीं है, ये डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड। सो ऑस्मोसिस के थ्रू लेस कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है या वाटर मूव करता है, तो पानी बाहर से कैरेट के अंदर मूव करेगा, जिससे कि कैरेट जो होगी वो फिर से फ्रेश हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज मीट। एक्चुअली one more question, it has been asked in various examinations, board examinations and entrance examination as well. Meat is preserved in salt while the fruits are preserved in sugar. जो मीट होता है ना, उसको अगर हमें प्रिजर्व करना है तो हम उसे सॉल्ट लगा के प्रिजर्व करते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स को हम शुगर के अंदर से स्टोर करते हैं फ्रूट्स को। ऐसा क्यों होता है? देखो, सपोज मीट और फ्रूट, मीट को हमने सॉल्ट में रखा, सिंपल सी चीज़ें, सपोज अ बैक्टीरियम कम्स, ओके, जैसी मीट में वो बैक्टीरिया आएगा तो क्या होगा, मीट विल बिकम एक रॉटन कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी उसकी, मीट सड़ने लगेगा। इन द सेम मैनर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स रखे हैं कुछ दिन के लिए, उस पर बैक्टीरियम आया तो फ्रूट्स भी रॉटन कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, वो भी सड़ने लगेंगे। सो व्हाट टू डू नाउ, मीट को हमने सॉल्ट रख दिया। अब जैसे ये बैक्टीरिया है, लिसन, दिस बैक्टीरिया, मीट इज हैविंग सॉल्ट बिकॉज मीट इज प्रिजर्व्ड इन सॉल्ट। सपोज ये सॉल्ट है, दिस इज अ बैक्टीरियम। जब बैक्टीरिया आता है बाहर की साइड में सॉल्ट 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 सॉल्ट, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जो सॉल्ट है हमारा, इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया है। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज इट इज़ हैविंग टू मच सॉल्ट। ये बैक्टीरियम जो है, इसमें तो सॉल्ट है नहीं बेचारे में, इस बैक्टीरिया में कोई सॉल्ट नहीं है। सो अंदर का जो हमारा बैक्टीरिया का जो इन्वायरमेंट हुआ, इनसाइड इन्वायरमेंट, इट बिकम्स व्हाट, वेरी डाइल्यूटेड, वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड। सो क्या होगा, यहाँ पे भी ऑस्मोसिस होगा। अब इस ऑस्मोसिस में कहाँ से कहाँ होगा फ्लो, बताओ? ऑब्वियसली लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मूव करता है हमारा जो सॉल्वेंट होता है, मैंने तुम लोगों को बताया है। सो बैक्टीरिया इज हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, एंड इट इज सराउंडेड बाय व्हाट, सॉल्ट इन केस ऑफ मीट एंड शुगर इन केस ऑफ फ्रूट्स। तो दोनों ही केस में जो बाहर का इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और बैक्टीरिया की इनसाइड का जो इन्वायरमेंट है, इट इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड। सो अल्टीमेटली क्योंकि लेस कॉन्सेंट्रेटेड है तो बैक्टीरिया से वाटर मूव करेगा बाहर की साइड में। आर यू गेटिंग मी? कहाँ मूव करेगा? इन द सॉल्ट इन केस ऑफ मीट, और इन शुगर इन केस ऑफ फ्रूट्स। सो क्या हुआ, बैक्टीरिया जैसी मीट पर या फ्रूट पर आया, तो जैसे ही वो अंदर इसमें आता है तो सॉल्ट का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और शुगर का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की वजह से बैक्टीरिया के अंदर से पानी निकल आता है, वाटर कम्स आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द बैक्टीरियम will lose water or shrinking, there would be the shrinking of bacteria, and due to shrinkage of the bacteria becomes dead. Are you getting me? इसीलिए मीट को हम सॉल्ट में प्रिजर्व करते हैं और फ्रूट्स को हम जो है वो शुगर में प्रिजर्व करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही उन पर बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्टी एंड शुगरी कंडीशन, द कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल बिकम्स वेरी high concentrated solution, and the inside of the bacterial cell is very less concentrated. So that's why the water from the bacterial cell comes out, the water from the bacterial cells comes out, okay, जिसकी वजह से वो shrink कर जाता है, और shrink करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए इन्हें प्रिजर्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये देख लेना, ये सारे एक बार मैंने सब बता दिए हैं। नेक्स्ट इज people taking a lot of salty foods develop swelling and puffiness of their tissues. इसे बोलते हैं, इसको एक पर्टिकुलर, दिस डिसीज इज नोन एज इडिमा, EDEMA, इडिमा। होता क्या है, लिसन, इफ अ पर्सन इज हैविंग सॉल्टी फूड, जैसे कोई सॉल्टी फूड ले रहा है, ओके,
अब सब एक सॉल्टी फूड लेता है, सॉल्टी फूड लेने से क्या होता है, बंदो जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, यहाँ जैसे स्किन है ना, यहाँ पर देयर वुड बी द पफीनेस, सॉल्टी फूड ज़्यादा खाओगे ना तो यहाँ स्किन पर पफीनेस हो जाती है। आर यू गेटिंग मी? पफीनेस हर जगह, swelling, puffiness, and this condition is known as edema. Edema is a kind of disease, puffiness of the tissues. Why this is happening? The question has been asked so many times. Why this is happening? Listen, actually what happens if a person takes too much salt, too much salty foods, ज़्यादा खाने में ज़्यादा अगर salt लेता है कोई, तो क्या होता है, ये suppose this is the cell of the normal person, but ये ज़्यादा सॉल्ट लेता था तो इसके सेल के अंदर जो सॉल्ट रिटेंशन पावर है वो बढ़ गई, मोर सॉल्ट रिटेन करता है। मतलब एक नॉर्मल सेल है, सपोज दिस इज द नॉर्मल सेल, ओके, इसमें सॉल्ट कम है, बट अगर कोई ज़्यादा सॉल्टी फूड लेता है तो उसकी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर रिटेंशन जो होगी ना, मोर सॉल्ट रिटेंशन हो जाता है उसके अंदर। आर यू गेटिंग मी? देयर वुड बी मोर सॉल्ट रिटेंशन। यहाँ सॉल्ट ज़्यादा हो गया सेल के अंदर क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट खाता है, मोर सॉल्ट मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन। अब अंदर यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा हो गया, ये बाहर का एनवायरनमेंट है इसके सेल के, तो बाहर तो इतना नहीं है लेकिन सेल के अंदर रिटेंशन पावर ज़्यादा हो गई, यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो गया। तो सॉल्ट अंदर होने की वजह से क्या होगा, अगेन वही कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स, द सेल इज़ हैविंग टू मच सॉल्ट बिकॉज द पर्सन वो ज़्यादा सॉल्टी फूड खाता था, तो ज़्यादा सॉल्ट सेल के अंदर आ गया, जिसकी वजह से जो सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है इट बिकम्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, इट बिकम्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। बाहर से, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, बाहर में तो पानी पानी है ज़्यादा, ठीक है, वाटर इज़ मोर, सो बाहर का एनवायरनमेंट इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड, बट सेल का एनवायरनमेंट बिकम्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मोर सॉल्ट। सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, बाहर का एनवायरनमेंट इज़ नॉट दैट मच कॉन्सेंट्रेटेड क्योंकि बाहर से तो पानी कंटिन्यू आ रहा है, ओके, हमारी बॉडी में आ रहा है। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द वाटर विल मूव इनसाइड, ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड द सॉल्वेंट और द वाटर विल मूव इनसाइड, द वाटर मूव्स फ्रॉम less concentrated or diluted solution to a more concentrated solution, okay. So inside of the cell is having more concentrated solution of salt, the outside environment is having less concentration, so obviously the water will move inside during the osmosis। और ये पानी बार बार इसमें हर जगह से मूव कर रहा है, देखो हर जगह से मूव कर रहा है पानी, water is coming in, water is coming in, so water is coming outside, too much water is coming, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा होने की वजह से जो सेल्स हैं वो स्वेल कर गई, देखो यहाँ स्वेल कर गई सेल, और स्वेल करने की वजह से जो स्किन होगी वो थोड़ी पफीनेस होगी, सारी सेल स्वेल कर जाएंगी, स्वेलिंग होगी जिसकी वजह से पूरी स्किन में एक पफीनेस आ जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड एडिमा, दिस इज़ कॉल्ड एडिमा। सो दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाई द पर्सन हु आर हैविंग salty food, they are having a very high chance of having the disease of edema. It is due to the retention salt, it is due to because the salt retention capacity of the cell increases, due to which the inside environment of the cell becomes more concentrated, and it leads to the movement of water from outside inside the cell during the osmosis, and this water actually makes the cells swelled और it creates a puffiness, और जिसकी वजह से edema disease होती है. Okay, now we'll talk about osmotic pressure. Osmotic pressure, it is actually a colligative property. Listen class, simple cheese. This again there are two solutions. One is less concentrated solution. Right side wala is the less concentrated solution, and the other जो left side में it is having high concentration. Less concentrated solution, again I am telling you the same concept so many times. Less concentrated solution means which is having less solute amount. High concentrated solution means which is having more solute amount. Are you getting me? High concentrated है ज़्यादा solute particles हैं, less concentrated है तो इसका मतलब less solute particles हैं इसमें. अब क्या होता है, ये both the solutions are separated with the help of semi permeable membrane. They are separated with the help of semi permeable membrane. So क्या होगा,
यहाँ पर ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड ड्यूरिंग दिस ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ मूव करेगा ज़रा बताना, वाटर मतलब सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? ऑब्वियसली द सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और ये जो हमारा राइट वाला है लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। यहाँ कंटिन्यू वाटर आ रहा है। देखो अब इस जो पहला वाला हमारा कंटेनर राइट वाला धीरे धीरे जैसे वाटर इधर से इधर मूव करेगा, सो इसमें जो जो हमारी ये कैनाल है इसमें जो लेवल है वाटर का वो नीचे आएगा, कि वाटर इज मूविंग इधर, हियर वाटर इज मूविंग लाइक दिस, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सो ये लेवल नीचे आएगा। बट जैसे जैसे वाटर यहाँ मूव करेगा देयर इज़ अ पिस्टन, ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा। आर यू गेटिंग मी? जैसे पानी यहाँ से यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली it will exert a kind of pressure जिससे piston will move up. Are you getting me? Now if we press this piston, हमने प्रेस किया, ठीक है, प्रेस करने के बाद क्या होगा ज़रा तुम बताओ? वाटर इज मूविंग फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, वाटर इज मूविंग फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इट इज़ मूविंग, जिससे पिस्टन ऊपर जाता है। अगर हम पिस्टन पे प्रेशर एग्जर्ट करें, ओके, सो जैसे हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और पिस्टन को हम नीचे लेकर आएंगे, ऑब्वियसली द फ्लो ऑफ वाटर विल गेट स्टॉप्ड। आर यू गेटिंग मी? पिस्टन को हमने नीचे किया तो क्या होगा, अब प्रेशर पड़ा नीचे तो ऑब्वियसली वाटर विल स्टॉप मूविंग फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, पिस्टन ऊपर होता था, हमने पिस्टन को प्रेस किया, जैसे ही हमने प्रेस किया तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता वो थोड़ा कम हो गया, हमने और प्रेस किया फिर और कम हो गया मूवमेंट वाटर का, फिर हमने और प्रेस किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो वाटर का मूवमेंट था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया। नाउ हमने प्रेशर एक्सर्ट किया पिस्टन पर एंड दिस रिजल्ट्स इन, ये क्या हुआ कि जो वाटर था हमारा इट स्टॉप्स मूविंग फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। आर यू गेटिंग मी? यहाँ से मूव करना बंद कर दिया, हमने पिस्टन को दबाते रहे, वाटर का मूवमेंट कम होता रहा, यहाँ से यहाँ और दबाया, ये और कम होता गया, और दबाया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रुक गया। ओके, समझ आया? तो अब ये जब रुक गया, मूव नहीं कर रहा, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। वाटर, इफ वाटर इज नॉट मूविंग फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट मीन्स क्या हुआ, ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। सो अल्टीमेटली हमने स्टॉप कैसे किया इसको, हमने यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया। आर यू गेटिंग मी? इस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से ऑस्मोसिस गेट स्टॉप्ड। सो अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ व्हाट, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड। जो हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है तो वो मिनिमम प्रेशर जो हम एक्सर्ट करेंगे जिससे कि ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बताया मैंने? द मिनिमम प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड, यहाँ से हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, द मिनिमम प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, और in other way we can say the minimum pressure which is exerted to stop the flow of solvent from low concentration to high concentration is called osmotic pressure। वो minimum pressure जो हम exert करते हैं उस pressure से हमारा जो flow of solvent है high concentration से low concentration में, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट है अगर वो स्टॉप हो जाए उस प्रेशर से तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया? एक बार फिर बताता हूँ, वो मिनिमम प्रेशर जिसके लगाने से ऑस्मोसिस रुक जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वो मिनिमम प्रेशर जिसको लगाने से जो वाटर का मूवमेंट है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो रुक जाता है, अल्टीमेटली ऑस्मोसिस रुक जाता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट ओके? दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, ओके, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration
Concentration मतलब it is directly proportional to the molarity of the solution. Osmotic pressure is directly proportional to the molarity of the solution. We have talked about two more colligative properties. Number one is lowering of freezing point and elevation in boiling point. In both the colligative properties, जो दोनों colligative property थी वो molality के directly proportional थी. But osmotic pressure is the only colligative property which is directly proportional to the molarity. Molality नहीं है यहाँ पे, molarity है. So osmotic pressure is directly proportional to the molarity and osmotic pressure is directly proportional to the temperature as well. If we combine both, दोनों को हमने combine कर लिया, so osmotic pressure is directly proportional to the concentration means molarity and it is directly proportional to the temperature. Here R is a proportionality constant, यहाँ से proportionality sign हमने हटाया. So R is a kind of proportionality constant and this R is known as solution constant. This is called solution constant. Solution constant ये gas constant था ना, वो वही है बिल्कुल. ये solution constant यहाँ पे solution में use हो रहा है, so that's why we are saying solution constant. It is same. Okay. Now it is C is what? Molarity. And the formula of molarity is number of moles of solute divided by volume of the solution RT. So this becomes another formula. Now listen. If we put the value of number of moles of solute is what? Given weight of solute divided by molar mass of solute. So if we put here given weight of the solute divided by molar mass of the solute, this is the volume of the solution, this is R, solution constant, and T is the temperature. So it becomes another formula of what? Osmotic pressure. Osmotic pressure, it is a kind of pressure. So obviously the unit of osmotic pressure is it is at ATM, atmospheric pressure. And you know 1 atmospheric pressure, these things are going to utilize in the numericals. So that's why I have put here 1 atmospheric pressure is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. It is also equal to 1.013 bar and it is also equal to 760 mm of Hg. ये सब इक्वल हैं. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल के इक्वल होता है, 1.013 बार के इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है. 760 mm ऑफ Hg को ही हम टॉर भी बोलते हैं, इसे 760 टॉर भी होता है. Okay, and here in this formula the value of the R should be, आपको क्या लेनी है, 0.083 और 0.082 आपको ये वैल्यू पुट करनी है इसके न्यूमेरिकल्स में. आर यू गेटिंग मी? तो इससे हम न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हैं इजीली. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. आइसोटोनिक मतलब सेम कि होता है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो. सपोज दीज आर टू सॉल्यूशंस, solution 1, solution 2. If both the solutions are having same osmotic pressure, so both the solution would be considered as isotonic solutions. Okay, और जिन solutions का osmotic pressure same होता है उन दोनों solution का concentration भी same होता है. So in short, what I really want to say, listen, solutions which are having same osmotic pressure, okay, and they are also having the same concentration. देखो मैं दिखाता हूँ. There are two solutions. This solution is having concentration C. This solution is also having the same concentration C, and at the temperature is constant T. So अगर हम इस solution का माने कि इसकी osmotic pressure है pi 1 और इस solution के जो osmotic pressure है it is pi 2. So pi 1 should be CRT. Concentration is same ना. C, R is constant, T is the constant, temperature is also constant. Pi 2 is equal to what? Concentration. Again the concentration is same C. R is constant and T is also constant. तो अगर हम इन दोनों को देखें, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, बोथ द ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, CRT CRT. So now it becomes what? Osmotic pressure of both the solution is same. So isotonic solution means those kind of solution which are having the same osmotic pressures
and they are also having the same concentration. So these kind of solutions are known as isotonic solutions. Listen class, 0.9% weight by volume NaCl solution जो होता है हमारा, वो आइसोटॉनिक होता है किसके? RBC के. मतलब अगर हम बात करें कि कोई सोल्यूशन है NaCl का 0.9%, जो ये 0.9% का मतलब क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहा है. 0.9% इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl सोल्यूशन. तो NaCl का जो 0.9% NaCl जो सोल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, वो बिल्कुल RBC के इक्वल होगा, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर आइसोटॉनिक. तो एक कंडीशन तो आइसोटॉनिक की थी कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सोल्यूशन वुड बी सेम. सो आइदर इट इज़ 0.9% NaCl solution or RBC. Both are having same osmotic pressure because both are isotonic. The other thing is isotonic solution में एक चीज़ और थी, दोनों का concentration भी सेम होता है. बताया था ना, osmotic pressure is same, and ये बताया था मैंने, देखा, osmotic pressure is same and they are also having the same concentration. So osmotic pressure is same, okay. सो और यहाँ पे क्योंकि आइसोटॉनिक हैं तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया. 0.9% NaCl सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.9, वही RBC का भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि दोनों आइसोटॉनिक हैं. सो आइसोटॉनिक सोल्यूशन मीन्स बोथ आर हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड बोथ आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. सो क्योंकि 0.9% NaCl सोल्यूशन इज़ आइसोटॉनिक टू RBC, तो RBC का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक्चुअली कैसा होता है? 0.9% NaCl सोल्यूशन ही होता है इनका. समझ आया? सो इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, NaCl कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RBC, इट इज़ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम. ओके, एक आया हमारा नेक्स्ट इज हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक सोल्यूशन. दीज आर वेरी सिंपल. हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब लो, हाइपरटॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन. भाई जिस सोल्यूशन का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटॉनिक सोल्यूशन. याद है आप लोगों को? तो वाटर मूव्स फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द, आई मीन द सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. तो उसमें जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, और जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था ना उस केस में, उसे हम हाइपोटॉनिक सोल्यूशन बोलते हैं. देखो, जिसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोर सॉल्ट, मोर नॉट मोर सॉल्ट, मोर सॉल्यूट, जिसका ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे जिसमें, वो हाइपरटॉनिक सोल्यूशन होता है. देखो, ये एक सेल है, ये कुछ भी ले लो, इसे एक हमने रखा कंटेनर जो भी है. दिस पर्टिकुलर थिंग एक सोल्यूशन है, ये इनसाइड ऑफ दिस इज़ हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन and it is surrounded by a very high concentrated solution. okay, very highly concentrated solution बाहर की साइड में है, अंदर की साइड में जो है ये बहुत ही लेस कॉन्सेंट्रेशन है. सपोज इस सेल है, कोई एनिमल सेल है, तो अंदर का इन्वायरमेंट इसका है वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन और इट इज़ सराउंडेड बाई वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है ना, जो बाहर की साइड में है, दिस इज़ अ हाइपरटॉनिक सोल्यूशन. अब इसमें क्या होगा? देखो, water moves during osmosis will take place here the osmosis will take place. and osmosis में क्या होता है? water कहाँ से कहाँ मूव करता है? less concentrated solution से मूव करता है highly concentrated solution में. तो water will move from inside of the cell to outside, बाहर की साइड में मूव करेगा. are you getting me? बाहर का environment बहुत ही highly concentrated है, जिसकी वजह से हम hypertonic solution कहते हैं. सेल के अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसलिए वाटर यहाँ अंदर से बाहर मूव करेगा. हाइपोटॉनिक, देखो, इट इज़ अ सेल, इसके अंदर का एनवायरनमेंट सेल के बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है. क्यों हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है? बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर सॉल्ट, बट इट इज़ सराउंडेड बाय अ सोल्यूशन विच इज़ हैविंग वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, बिकॉज इट इज़ हैविंग वेरी लेस सॉल्यूट अमाउंट. सो ये वाला जो सोल्यूशन है जिसमें सेल सराउंड करिए सेकेंड केस में, यहाँ पर इसको बोलेंगे, इस सोल्यूशन को हम हाइपोटॉनिक, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज लो. हाइपो मीन्स लो, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. इस केस में क्या होगा ज़रा बताओ? बाहर की साइड में लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, अंदर की साइड में सेल के हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है.
So water will move from low concentrated solution to the high concentrated solution. So water will move inside और जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगी. पहले केस में क्या हुआ था, सेल जो थी श्रिंक कर गई थी. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स कि अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें तो क्या होगा, तो सेल जो होगी वो श्रिंक कर जाएगी. बट इफ़ वी पुट अ पर्टिकुलर सेल इन अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तो सेल क्या होगी, ये स्वेलिंग हो जाएगी, इसमें स्वेलिंग ऑफ सेल. सो ये हमारा हुआ. सो टुडे क्लास कुछ टॉपिक इसमें रह गए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दिस द रिमेनिंग पोर्शन and I will also cover some numerical portion regarding this osmotic pressure. So it was all about for today's video. We'll meet in the next week. I'll see you in the next video. So till then, goodbye. If you like the video, please press the like button. Okay, thank you. Have a nice day.